بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں عمر ستی۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ اسسٹنٹ کمشنر ٹوبہ ضیاء شاکر کی بڑی کارروائی، کروڑوں روپے مالیت کا سرکاری رقبہ واگزار کروا لیا گیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے سپوت قومی ہیرو شکیل جٹ کی نماز جنازہ آباہی گاؤں 320 گاؤں وے میں ادا کر دی گئی۔ انٹرنیشنل کبڈی پلیئر شکیل جٹ کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ آباہی گاؤں میں دفن کر دیا گیا۔ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی ڈسکا میں ڈیلرز ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں امیدوار برائے صدر چودھری امتیاز علی واریا اور امیدوار برائے جنرل سیکرٹری رانا مبین کامیاب ہو گئے۔ رینالہ خود نو منتخب صدر رانا احتشام الحق اور چودھری ریاض صادق جنرل سیکرٹری تحصیل بار ایسوسی ایشن رینالہ خود کے اعزاز میں شاندار ظہرانہ دیا گیا، جس میں سینئر وکلاء سمیت شہر بھر کی سیاسی اور سماجی شخصیات، سول سوسائٹی اور صحافیوں نے بھرپور شرکت کی۔ کوٹلی لوہارا ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے کہ تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، اچھی تعلیم ہی کامیابی کی واحد کنجی ہے۔ اوکاڑا میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال اوکاڑا میں مبینہ غفلت سے مریض کے جاں بحق ہونے کا واقعے کا نوٹس لے لیا۔ شیر گڑھ میں چیف سیکرٹری وعدہ وفا نہ کر سکے، 20 جنوری کو پہیہ جام ہوگا۔ خیبر آباد سیوری سسٹم بند، نکاسی آب کا انتظامی نہ ہونے سے گلیاں بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے، شہری سراپا احتجاج، اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پرینتا کمارا کیس میں ملوث 79 ملزمان کو انسدادی دہشت گردی کے خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نتاشا نسیم سپرا نے کیس کی سماعت کی۔ رینالہ خود ریلوے کے کنٹریکٹ ملازمین کا 4 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر ریلوے ٹرک پر احتجاج۔ رینالہ خود نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی جانب سے بیٹ نمبر 14 پر سموگ اور دھند اور ریفلیکٹنگ سٹیکر کے متعلق ڈرائیور حضرات کو بریفنگ دے دی گئی۔ کوٹلی لوہارا میں ڈاک خانوں کے سیونگ اکاؤنٹ ہولڈرز پریشانی کا شکار، عملے کی تعاون کرنے سے انکاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، تفصیلات شامل کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ نیوز آئی میں خوش آمدید، بڑھتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اسسٹنٹ کمشنر ضیاء شاکر کی بڑی کارروائی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ اسسٹنٹ کمشنر ضیاء شاکر کے حکم پر محکمہ ریونیو نے پولیس کے ہمراہ اڈا سونت چک نمبر 254 گاہ وے میں کروڑوں روپے مالیت کا سرکاری رقبہ واگزار کروا لیا گیا۔ واگزار رقبہ کی مالیت کروڑوں روپے ہے۔ سرکاری رقبے پر بنے گھروں کو بھاری مشینری کی مدد سے گرا دیا گیا۔ رقبے پر کاشت کی گئی فصلوں کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری رقبہ پر قبضے کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔
टोबा टेक्सिंग के सपोर्ट कौमी हीरो शकील जट की नमाज जनाजा आबाही गाँव 320 गाह बे में अदा कर दी गई। गुज़श्ता रोज़ हादसे के नतीजे में शहीद होने वाले कौमी हीरो मारूफ कबड्डी के खिलाड़ी शकील जट की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कौमी कबड्डी खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। शहीद होने वाले कौमी प्लेयर शकील जट गुज़श्ता 9 साल से पाकिस्तान आर्मी की नुमाइंदगी करते हुए कई ममालिक में खेल चुके हैं और 2016 में के कबड्डी वर्ल्ड कप में भी शकील जट की नुमायां खदमात भी हैं। कौमी खिलाड़ी की नागहानी मौत पर टोबा टेक्सिंग की फजा सोगवार है। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से पाकिस्तान के सपूत को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया और सलामी के बाद मारूफ खिलाड़ी को आबाही गाँव 320 गाँव में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सिटी हाउसिंग सोसाइटी डस्का में डीलर्स एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में उम्मीदवार बराए सदर चौधरी इम्तियाज अली वरिया और उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी राना मुबीन कामयाब हो गए। सालाना इंतखाबात में डीलर्स ने अपने अपने मनपसंद उम्मीदवारों को वोट कास्ट किए, जबकि सालाना इंतखाबात में चौधरी इम्तियाज अली वरिया सदर जबकि राना मुबीन जनरल सेक्रेटरी का कांटेदार मुकाबला हुआ। कांटेदार मुकाबला के बाद कामयाब हुए। हतमी नताज के बाद नौ मुंतखब सदर चौधरी इम्तियाज अली वरिया और नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी राना मुबीन की कामयाबी पर इनके वोटर और सपोर्टर्स ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाल के और खुशी का इजहार किया और नौ मुंतखब अहदेदारान को कंधों पर उठाकर खूब नारेबाजी की। कामयाबी के बाद नौ मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबादें दी। इस मौके पर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेंबर मियां खलील, डीलर अरसलान खान, चौधरी मोहम्मद जुबैर समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने नौ मुंतखब अहदेदारान को फूलों के गुलदस्ते पेश किए और हाथ पहना कर मुबारकबादें दी। जबकि मुबारकबाद देने वालों को इंतखाबात में कामयाबी की खुशी में मिठाइयाँ भी खिलाई गईं और इस मौके पर नौ मुंतखब सदर चौधरी इम्तियाज अली वरिया और जनरल सेक्रेटरी राना मुबीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फरमाया इंतखाबात में वोटर्स और सपोर्टर की सपोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। जबकि कारोबारी हल्कों समेत डीलर्स और मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने भी गुफ्तगू करते हुए फरमाया नौ मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश करते हैं। रैनाला खुद नौ मुंतखब सदर बार राना इरशामुल हक और चौधरी रियाज सादिक जनरल सेक्रेटरी तहसील बार एसोसिएशन रैनाला खुद के एजाज़ में शानदार ज़हराना दिया गया, जिसमें सीनियर वकला समेत शहर भर की सियासी और समाजी शख्सियात, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों ने शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक और हदिया नात से किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए सदर बार राना इरशामुल हक ने कहा कि वकला की बड़ी तादाद ने हमें वोट देकर हमें कामयाब करवाया, इनका तहे दिल से मशकूर हूँ। उन्होंने तहसील बार एसोसिएशन के मीडिया एडवाइजर्स बनने पर मलक खुर्रम शहजाद को मुबारकबाद पेश। जबकि जनरल सेक्रेटरी बार चौधरी रियाज सादिक ने इस शानदार तकरीब को सजाने पर मलक अब्दुल हफीज़ आवान, चौधरी सईद, मलक कासिम, अमीर साबिक, नायब नाज़म और राना बशीर अहमद का शुक्रिया अदा किया। तकरीब के आखिर में मलक खुर्रम शहजाद को बाद मीडिया एडवाइजर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तकरीब में आने वाले तमाम मेहमानों के लिए पुरतकल्लफ खाने का भी एहतमाम किया गया था। आगे बढ़े और खबर शामिल करते हैं कोटली लोहारा से। डॉक्टर फिरदौस आशिक का कहना है कि तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती, अच्छी तालीम ही कामयाबी की वाहिद कुंजी है। डॉक्टर फिरदौस आशिक ने इन ख्यालात का इजहार एफा स्कूल सिस्टम कोटली लोहारा मशरकी ब्रांच का इफ्ताह करते हुए किया। इनका मजीद कहना था कि कौमों की तरक्की इल्म की वजह से होती है। मौजूदा हुकूमत ने यकसा निज़ाम तालीम मुतारफ करवा कर मुल्क में जो तबकाती निज़ाम का खात्मा किया है, कुरान पाक की तालीम लाजमी करार देना भी मौजूदा हुकूमत का कारनामा है। मुल्क में शरह-ए-ख़वानदगी में इजाफे के लिए माशरे के तमाम मकातिब को अपने किरदार अदा करना होगा ताकि हम भी तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ में शामिल हो सकें। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ओकाड़ा में मुबैना गफलत से मरीज के जाँबाक होने के वाक़े का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी सेहत और कमिश्नर साहिवाल से रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े की तहकीकात करके गफलत के जिम्मेदारों का तयन किया जाए। मरीज को बर वक्त इलाज मुआवजा फराहम करना अस्पताल इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। बर वक्त इलाज मुआवजे में गफलत पर मुतल्लिका तिब्बी अमले के खिलाफ तादीबी कार्रवाई कर दी जाएगी। शेरगढ़ में चीफ सेक्रेटरी वादा वफा न कर सके, 20 जनवरी को पहिया जाम का ऐलान। किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड का आला सतह का हंगामी इजलास शेर सदारत खालिद हुसैन बाट मरकजी चेयरमैन मुनक्किद हुआ। शेर सदारत खालिद हुसैन बाट मरकजी चेयरमैन मुनक्किद हुआ। इजलास में मियां गुलाम मुस्तफ़ा मरकजी सीनियर वाइस चेयरमैन, मियां उमैर मसूद मरकजी सदर, चौधरी मोहम्मद इफ्तिखार, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद हुसैन, मलक मोहम्मद यासीन सूबाई सेक्रेटरी पंजाब, आमिर खान जंदरान एडवोकेट समेत दीगर ने शिरकत का फैसला किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जायज़ मुतालबात को तस्लीम करने का वादा किया, मगर अफसोस चीफ सेक्रेटरी पंजाब वादा वफा न कर सके, जिस पर किसानों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इसलिए किसान इत्तेहाद 20 जनवरी को ज़िला ओकाड़ा समेत पाकिस्तान का हर ज़िला हेडक्वार्टर
बैक वक्त बंद करके मुल्क भर में अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए पुरअमन एहतजाजी नोट करवाएंगे और मुतालबात पूरे न होने की सूरत में पाकिस्तान भर से काफिले इस्लामाबाद की जानिब मार्च करके पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। हबीबाबाद में निकासी आब का इंतजाम न होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। नालियों और गटरों का गंदा पानी गली बाजारों में नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। नमाजियों को मस्जिद जाने और बच्चों को स्कूल जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। गली बाजारों में खड़ा सीवरेज के पानी से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों ने एहतजाज करते हुए DC कसूर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर लिया। प्रियंका कुमार केस में मुलविस 79 मुल्ज़मान को इंसदादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश किया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जज नताशा नसीम सिपरा ने केस की समाअत की। पुलिस की तरफ से मुल्ज़मान के मजीद 15 रोज जिस्मानी रिमांड की सजा की गई थी। अदालत ने मुल्ज़मान को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्ज़मान को दोबारा 31 जनवरी को अदालत पेश किया जाएगा। पेशी के मौके पर पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस की भारी नफरी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मौजूद रही। रेनाला खुद रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का 4 माह से तनख्वाहें न मिलने पर रेलवे ट्रैक पर एहतजाज डू ऑनलाइन पर काम करने वाले 90 मुलाजमीन ने किया। महंगाई की वजह से पहले परेशान हैं, घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए। तनख्वाहें न मिलने की वजह से शदीद परेशानी है। बच्चों की फीसें 4 माह से स्कूल जमा नहीं करवा सके। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान वफाकी वज़ीर रेलवे और रेलवे के आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से बेट नंबर 14 पर स्मॉग, धुंध और रिफ्लेक्टिंग स्टिकर के मुतालिक ड्राइवर हजरात को ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर एडमिन ऑफिसर तोकीर अब्बास ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि धुंध के औकात में अपनी गाड़ी या मजदा ट्रक की रफ्तार इंतहाई आहिस्ता रखते हुए अपनी से अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। ड्राइविंग पर मुकम्मल तवज्जो रखें। फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। अगर गाड़ी में फोग लाइट्स नहीं हैं तो फिर पार्किंग लाइट्स और हेडलाइट्स को ऑन कर दें या दोनों इशारे ऑन रखें। इस मौके पर ड्राइवर हजरात ने रिफ्लेक्टिंग स्टिकर तकसीम किए गए और गाड़ियों पर लगाए गए। आगे बढ़ें और खबर शामिल करते हैं सियालकोट कोटली लोहारा से, जहां पर डाकखानों के सेविंग अकाउंट होल्डर्स परेशानी का शिकार, अमले की तावन करने से इनकारी। जिंदगी भर की जमा पूंजी के हसूल के लिए शहरी चकरा कर रह गए। हमें हमारी रकम वापस की जाए, मुतासिन का वजीर मवासलात से मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक वजारत मवासलात ने डाकखानों के सेविंग अकाउंट मरकजी कौमी बजट को मुंतकिल कर दिए हैं, जिससे अकाउंट होल्डर्स अपने मुतल्लिका डाकखाने में जाते हैं तो उन्हें GPO सियालकोट जाने का कहा जाता है, जहाँ का अमला अदम ताउन की बुनियाद पर शहरियों को मरकजी कौमी बचत जाने का मशवरा दे देता है। मरकजी कौमी बचत में पहुँचने वाले शहरियों को ज़लील रुस्वा और मायूस होकर वापस लौटना पड़ता है। मुतासरीन वारिस अली और दीगर का कहना है कि डाकखानों से बगैर नोटिस के शहरियों की भारी रकम मरकजी कौमी बचत मुंतकिल कर दी गई। अब शहरी अपनी जमा पूंजी के हसूल के लिए दरबदर जलील और रुस्वा हो रहे हैं। अकाउंट होल्डर्स ने वज़ीर मवासलात पाकिस्तान उमर सईद से मुतालबा किया है कि इनके अकाउंट्स डाकखानों में बहाल किए जाएं या मरकजी कौमी बचत को फौरी तौर पर रकम की अदायगी का पाबंद किया जाए। न्यूज़ ऐसे अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए न्यूज़।